لیکن مسئلہ اصل میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے بچوں نے پڑھا نہیں ہے اور ہمارے والدین کو اپنی بچوں پر توجہ دینا چاہیے۔ آج جو اپنے اگزام سے کترا رہے تو یہ اپنے والدین کو بھی ایک میسج ہے کہ آپ کے بچوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے۔ 3 سال تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے کے کالج میں بٹھایا ہے اور خرچے بھی خرچ کیے اس کے اوپر۔ آپ لوگ تو مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ رہے، لیکن آپ کے بچوں کا یہ حال ہے کہ 3 سال بعد اپنے سبجیکٹ کے اگزام دینے سے وہ کترا رہے، تو پڑھا نہیں ہے، اپنے اگزام سے یہ گھبرا رہے، اگزام کو اوائڈ کر رہے، اگزام سے یہ بھاگ رہی ہے۔ شروع میں کمال کو ہٹانے کا کوئی فائدہ نظر آیا؟ احتجاج تو مزید بڑھ گئی۔ شام صاحب ابھی وزیر اعلیٰ تھا، ابھی بھی ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک جمہوری سسٹم ہے۔ دیکھو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا ہماری شرافت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک ہڑتال کا ایشو ہے ہی نہیں، ہڑتال کا جواز نہیں بنتا۔ ابھی لوکل گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ گرانٹ اینڈ ایڈ پہ چلتا ہے، تو گرانٹ اینڈ ایڈ پہ ان کو کوارٹرلی 3 مہینے کے بعد تنخواہیں ملتی ہے، تو ان کی تنخواہوں کا باقاعدہ بجٹ جو ہے وہ LCGC سے پاس ہوتا ہے، پھر کیبنٹ میں آتا ہے۔ تو کیا آپ اس میں اتنا دیر نہیں لگتا؟ ظاہر سی بات ہے LCGC ہوئی، اس کے بعد کیبنٹ میں آیا، ابھی کیبنٹ کی منٹس آ گئے تو کل ان کو تنخواہیں ملنے والی ہے۔ تو کیا واسا کا کل باقاعدہ میرے ساتھ وہ ہے ریلیز ہے، واسا کی تنخواہیں مل گئے۔ آپ کا ملک ہے، آپ کام کرے، 5 دن اگر تنخواہیں لیٹ ہو گئے، کسی نے انکار نہیں کیا، طریقہ کار ہے، یہ قانون کسی کے نہیں ہے، نہ کوئی میرے ذاتی ملازم ہے کہ جیب سے پیسہ نکال کے ان کو دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات، وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پیپر میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے ہمیں اچانک ہماری کال پہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور وقت پہ پہنچ گئے، تو میں مشکور ہوں آپ سب کی۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو ہم نے بتانا یہ تھا کہ جیسے آپ کی موجودگی میں ہم گئے تھے، ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹس جو 3 کالجز کے سٹوڈنٹس نکلے تھے ہڑتال دھرنے پہ، تو ریڈ زون آنے کی انہوں نے کوشش کی، تو یہاں پر ہمارے فورسز نے اس کو روکا، پھر ہم بات چیت کے لیے گئے ان کے پاس، تو تھوڑا سا میں یہ ریٹرن اگر آپ کو تو ہم نے ان سے CM صاحب تو ہماری اسلام آباد میں ہے، آلریڈی CM صاحب اس معاملے اسی سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، چیف سیکرٹری بھی ساتھ ہے اور ہمارے سیکرٹری ہیلتھ اور سیکرٹری منسٹر ہیلتھ بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ 1-2 میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ تو ہم آج ان کے پاس گئے اور ان سے ہم نے مذاکرات کی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ برائے مہربانی آپ کا جو بھی ایشو ہے، آپ ہمارے لوگ ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ پڑھائی کے بجائے روڈوں پہ آ جائے اور آپ کلاس کی بجائے سڑک پر بیٹھ جائے، تو آپ ہمارے بچے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے ہم آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی نمائندہ حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، تو انشاءاللہ آپ کی مسائل کا ہم نے مسئلوں کا ہم نے آلریڈی نوٹس لے کے اس پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے PMC سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ تو افسوس کی بات ہے آج کل ہر بندہ یقیناً جمہوری سیٹ اپ ہے، جمہوری نظام ہے، ہر بندہ، ہر اسٹوڈنٹ، ہر ملازم سیاست کا شکار ہو گیا، تو ہماری باتوں کو انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ آپ صحافی حضرات کو بخوبی علم ہے مسئلہ کیا ہے ان کا، ان اسٹوڈنٹس کا۔ یہ ایک تو آج اور کل ہماری جو نشستیں ہو رہی ان میں ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ PMC نے ایک بات مان لیا کہ ہم آپ کی کالجز جو ہے وہ رجسٹر کریں گے، لیکن ایک جو ہماری پروفیشنل کوئی ایک ٹیسٹ ہم لیتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری PMC کا، بلکہ ہونا بھی چاہیے، یہ صرف PMC کے وہ نہیں ہے، ریکوائرمنٹ ضروری بھی ہے، یہ ٹیسٹ ہمیں دے دے تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی ان کی ڈگریوں کو بھی ہم ریکگنائز کریں گے اور رجسٹر کریں گے، اسٹوڈنٹ کو رجسٹریشن دے دیں گے۔ لیکن ہماری اسٹوڈنٹ
समझ नहीं आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट जो 3 साल इन्होंने पढ़ा है, तो जब 3 साल एक सब्जेक्ट आप पढ़े और फिर उसमें एग्ज़ाम देने से कतराते क्यों हैं आप? तो एग्ज़ाम देना आपकी मफाद में भी है और हमारी मफाद में भी है और पीएमसी की रिक्वायरमेंट भी है। देखो, पीएमसी एक ऐसा इदारा है, पीएमसी की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दुनिया जहान में माना जाता है। बहुत से मुल्कों के डिग्री दुनिया जहान में तस्लीम नहीं है। हमारे पीएमसी का जो भी डिग्री है, पीएमसी भी जो भी डिग्री जारी करते हैं वो डिग्री जो है दुनिया में मानी जाती है। तो पीएमसी कभी भी अपने रिकॉर्ड को ख़राब नहीं करते, बल्कि पीएमसी भी हमारे मुल्क का एक इदारा है। वो भी किसी से दुश्मनी की बुनियाद पर किसी का एग्ज़ाम नहीं लेते। वो देखो, डॉक्टर्स हमारी मुस्तकबिल की मसीहा है और यही डॉक्टर हमारे माशरे की खिदमत करेंगे। ये इंसानों के डॉक्टर होंगे, ये कोई ऐवानों के डॉक्टर नहीं होंगे, ये कोई अहम प्रोफेशनल सीट पर नहीं है। इंसानों की ज़िंदगी इनसे वाबस्ता होंगी। तो यही लोग माशरे में जब फारिग हो के आएंगे, हमारे माशरे के लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम देने या लेने में कोई हर्ज नहीं है और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने एग्ज़ाम से कतराते क्यों हैं। अभी हमारा आज आपसे मीडिया के तवस्सुत से मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके पेरेंट्स से और जो भी इस मामले से दिलचस्पी रखते हैं, इन सब को हम बताना चाहते हैं कि इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जितनी प्रोग्रेस किया है, जितनी पीएससी से मीटिंग किया है, वो आपको हम आपके सामने रखेंगे। और बल्कि इनसे जो हमने बात की, हमने बात भी यही की कि आप हमारे ऊपर ये छोड़ दें, हम आपकी मसले को हम उठा के ले गए इस्लामाबाद। ऑलरेडी हमारे सीएम साहब वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आप लोग एहतजाज ना करें, आप लोग ये बुक हड़ताल वगैरह ख़त्म कर दें और आप लोग यहाँ पर कानून आत में लेने की कोशिश ना करें। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों को किसने उकसाया है, हमारे बच्चे किसके हाथ खेल रहे, और ये फिर अल्लाह ही को मालूम होगा और आपको मालूम होगा। तो ये हमारे हाल रेडी इनसे बातचीत चल रही है और मामला भी किसी हद तक गया भी होगा। लेकिन मसला असल में एक चीज़ है जो कि हमारे बच्चों ने पढ़ा नहीं है और हमारे वालिदैन को अपनी बच्चों पर तवज्जो देना चाहिए। आज जो अपने एग्ज़ाम से कतरा रहे, तो ये अपने वालिदैन को भी एक मैसेज है कि आप के बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है। 3 साल तो आप लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन ले के कॉलेज में बिठाया है और ख़र्चे भी खर्च किए उसके ऊपर। आप लोग तो मुतमईन है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का ये हाल है कि 3 साल बाद अपने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने से वो कतरा रहे। तो पढ़ा नहीं है, अपने एग्ज़ाम से ये घबरा रहे, एग्ज़ाम को अवॉइड कर रहे, एग्ज़ाम से ये भाग रही है। तो इस मामले पे ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट तो किसी को भी कानून हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते, न किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त देते हैं। ये आज ये स्टूडेंट्स हैं, कल डॉक्टर हज़रात बैठे थे, उनसे भी हमारी मुज़ाकरात हुई। एहतिजाज करना, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि एहतिजाज करना हमारे पाकिस्तानी हर शहरी का हक़ है, लेकिन एहतिजाज कानून के दायरे में रहते हुए आप एहतिजाज कर सकते। इनका एहतिजाज बेशक अपने इदारे में वो अगर कर लेते तो हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, हमने नोटिस भी ले लिया उनका। मज़ीद रोडों पे आना और इसी तरह हमारे बहुत से एम्प्लॉयज़ है जो कि आजकल एक मामूली इशू पे, ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की शराफत है। गवर्नमेंट के साथ सब कुछ है, गवर्नमेंट कोई एक 100-200 बंदों की जवाब नहीं। गवर्नमेंट पूरा जो स्टेट चला रहे, जो गवर्नमेंट है, तो उनके साथ सब कुछ है। लेकिन हमारे लोग हैं, हम कोशिश करते कि नरमी से उनके साथ हम बरते और इनको हम अपने ही लोग समझते हैं, ताकि हम ऐसे तरीके से उसको ट्रीट किया जाए ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए और गवर्नमेंट वो अपना गवर्नमेंट ही समझे। लेकिन ये मेरे ख़्याल में मुनासिब भी नहीं कि एक वासा के मुलाजिमों का 10 दिन तनख्वाह लेट हो जाए, वो सड़क पे आ जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट के तनख्वाह 5 दिन लेट हो जाए, लेकिन ये कभी ना मीडिया ने उससे पूछा है, ना ये इन्होंने ख़ुद कभी सोचा है कि हमने क्या काम किया है, क्या ये हमारा तनख्वाह हक भी बनता है। और फिर ख़ास कर 5 दिन अगर लेट हो गए तो ये फिर रोड पे आ जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए, ये ट्रेंड ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हमने सिर्फ मीडिया के तवस्सुत से ये बताना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़
पेरेंट्स अवामुन्नास ये देख ले कि ये स्टूडेंट इनका कि इन स्टूडेंट का मुतालबा किया है, क्या ये जिनियन है। कल खुदा न खास्ता गवर्नमेंट अगर एक्शन में आ गया तो फिर लोग कहते हैं कि तलबा के साथ ज़्यादती है। देखो तलबा जो है अपने हक़ का आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता। तलबा किया ये तलबा का हक़ है कि वो एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने से कतरा रहे। तो क्या ये डॉक्टर नहीं है? क्या आप जब अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं क्या फिर इस डिग्री लेने के आप काबिल हैं? तो ये थोड़ा सा मसला उनके अंदर भी ये है कि ये कुछ दिन पहले सीएम साहब के पास मिलने आए थे। सीएम साहब ने हर किस्म सपोर्ट देने का ऐलान किया था उनके साथ, बल्कि सपोर्ट भी किया। और ये लोग अदालत गए, अदालत से ये मायूस हो के वापस आ गए। और फिर हमने यही कहा, सीएम साहब ने कहा कि ये केस हम लड़ेंगे, उठाएंगे फेडरल के साथ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जो है रोडों पे आते हैं, रेड जोन का रुख करते हैं। इनके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तकरीबन कोई 10 या 15% लोग इस तरह होंगे जो एग्ज़ाम देने से कतरा रहे। बाकी बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है, जो कि काबिल है, वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार भी है। उनके अंदर भी ये डिवीज़न है कि कुछ लोग जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं। जो कि मैं एक चीज़ बता दूं, मैं वहाँ जैसे गया, मैंने देखा ये डॉक्टर है, लेकिन आप इनके रवैये को देके, आप इनके बॉडी लैंग्वेज को देके, आप इनकी मेडिकल फिटनेस को देके ये डॉक्टर लगते ही नहीं है। लेकिन ये है फिर भी इनको दाखिला दिया गया है। तो एग्ज़ाम देना मेरे ख़्याल में कोई जुर्म नहीं है। तो ये असल में ये एग्ज़ाम देने से भाग रहे। तो आपको सिर्फ इतनी इतला देनी थी कि आपको हकीकत का पता भी होगा और हकीकत का पता होना भी चाहिए, और आप मीडिया जो है असल हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप लोगों ने बात की, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ जो बनाई थी, ज़ाहिर है उसको इनके साथ रजिस्ट्रेशन करना भी लाजमी था। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन हुई है 2021 दिसंबर में हुई है आपके, अभी कुछ महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुई। तो जब उनके साथ MOU साइन हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी बच्चा ने इसमें दाखिला लिया था वो हमारा एक एंट्री टेस्ट छोटा सा है वो देगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है, बाकी चीज़ें तो सारी मामला ठीक हो गए हैं। जी नहीं, इनके साथ नहीं था। आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं हो सकता जब तक वो आप डॉक्टर भी बन जाएं, अगर आप कहीं नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे, जब तक इनकी रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होगी इनके साथ, उसके लिए एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट उन्होंने रखा है, जो MCQ, जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही कानून रखा गया हुआ है। आप जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या जब PMC ने नहीं लिया, PMC ने नहीं लिया नहीं, वो तो आप PMC की रिक्वायरमेंट है, ये PMC की रिक्वायरमेंट है। PMC की एक रिक्वायरमेंट है। मेडिकल कॉलेज के जो अपना एंट्री टेस्ट है वो तो बेशक इन्होंने दिया होगा, लेकिन PMC की रिक्वायरमेंट ये है कि PMC में जब कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है या कोई कॉलेज रजिस्टर होता है तो उनके अपने क्राइटेरिया है, और स्टूडेंट जब दाखिला लेते हैं वो PMC का टेस्ट भी लेते हैं। बात ये है, देखो कानून है, कानून को जो भी चढ़ते हैं, कानून को जो भी हाथ में लेते हैं, कानून ये पूरा स्टेट जो चल रहा है ये कानून के तहत चल रहा है। ये कोई आम मेरे सिस्टम नहीं है ना आपका सिस्टम है। कानून को किसी ने हाथ में नहीं लेना है। जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो किसी का कोई मजाज नहीं कि किसी के ऊपर हाथ ऊपर करे। ये कौन सा तरीका है कि आप बच्चों को भी निकालें और आके कोई रेड जोन की तरफ, यहाँ सिक्योरिटी इशूज़ है तो सिक्योरिटी इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया की ज़ाहिर सी बात जिम्मेदारी बनती है। मारा भी ये मेरे ख्याल में एक, अगर आपके साथ कोई इस तरह की वो क्लिप है तो आप हमें दिखा दें। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं है। पुलिस वालों ने हमें कहा, हमने इनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी हमारी उनके साथ न कोई बीमारी हुई है न कोई आतापाई हुई है, लेकिन सिर्फ ये इशू बना रहे हैं। इसके अंदर ये स्टूडेंट्स के अंदर बाकी और भी लोग घुसे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जब पॉलिटिसाइज हो गया मामला, पॉलिटिशियन तो जाहिर सी बात है तैयार बैठे हुए हैं। बाकी 3 सूबों में जो रजिस्ट्रेशन हुई है
कह रहे हैं कि उनका कोई स्पेशल टेस्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत है जो उजलत में भाईजान ये सारे गलत फहमी फैला रहे। एक चीज़ मैं बता दूं, हमारी सिंध को वो काउंट कर रहे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट को काउंट कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की कोई कॉलेज भी रजिस्टर नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट भी, किसी स्टूडेंट को भी पीएमसी के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उनकी डिग्री नहीं मिलेगी। बेशक वो कोई सियासत करे उस पर, हम सियासत नहीं करना चाहते। हमारे बच्चे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं हो जाए, उनको प्रॉपर तरीके से कोई डिग्री मिल जाए। लेकिन अगर ज़बरदस्ती की बात है, हम भी अभी गवर्नमेंट उसको बच्चों को कह सकते हैं कि आप पढ़े, मरकज़ को हम कोई हिसाब में भी नहीं लेते हैं और आपको डिग्री फिर मिल जाएगी, किसी वक्त मिल जाएगी। आप हमें ये बता दें कि सिंध गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज रजिस्टर्ड है पीएमसी के कानून के मुताबिक। देखो पीएमसी एक ऐसे इदारा है जो कोई ब्लैकमेलिंग और प्रेशर में नहीं आती, वो पूरा आज़ाद इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, वो न किसी के प्रेशर में आता है, न वो अपने मियार पे कोई कंप्रोमाइज़ करता है। उमर साहब, न सिर्फ तलबा, मेट्रोपॉलिटन के मुलाजमीन वो भी सरापा एहतजाज है, वासा के मुलाजमीन हमने देखा वो भी सरापा एहतजाज है, सफाई की सूरत हाल अंतर है, डॉक्टर्स भी 4 माह से जब 2 दिन से रोड बंद है गोदान की, मतलब वहाँ कोई अगर एक सवाल देखो यही अर्ज मैंने शुरू में को हटाने का कोई फायदा नजर आया, एहतजाज तो मजीद बढ़ गया। जाम साहब अभी गुजराला था, अभी भी एक सिस्टम चल रहा है, एक जमहूरी सिस्टम है। देखो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि थोड़ा सा हमारी शराफत का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक हड़ताल का इशू है ही नहीं, हड़ताल का जवाज़ नहीं बनता। अभी लोकल गवर्नमेंट, आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट ग्रांट एंड एड पे चलता है, तो ग्रांट एंड एड पे उनको क्वार्टरली 3-3 महीने के बाद तनख्वाहें मिलती है। तो इनकी तनख्वाहों का बाकायदा बजट जो है वो LCGC से पास होता है, फिर कैबिनेट में आता है। तो क्या आप इसमें इतना देर नहीं लगता? ज़ाहिर सी बात है LCGC हुई, उसके बाद कैबिनेट में आया, अभी कैबिनेट की मिनट्स आ गए, तो कल इनको तनख्वाहें मिलने वाली है। तो क्या एक वासा का कल बाकायदा मेरे साथ वो है रिलीज़ है, वासा की तनख्वाहें मिल गए। आपका मुल्क है, आप काम करें, 5 दिन अगर तनख्वाहें लेट हो गए, किसी ने इनकार नहीं किया, तरीक़ाकार है, ये कानून किसी के नहीं है, ना कोई मेरे ज़ाती मुलाजिम है कि जेब से पैसा निकाल के इनको दे दे। ज़ाहिर सी बात है, एक तरीक़ाकार के मुताबिक हर किसी को तनख्वाहें भी मिलती हैं और अपने टाइम पे तनख्वाहें बताइएगा कि आपने जो बात की यहाँ पे कि तलबा जो है टेस्ट देने से घबराते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं, इस चीज़ से तलबा के ऊपर एक तरह का इल्ज़ाम भी जा रहा है, मुश्तिल भी हो सकते हैं, जबकि इस वक्त 5 तलबा जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरे में हैं, जिस पर उनका कहना है कि हुकूमत के खिलाफ FIR भी करेंगे अगर किसी को कुछ हो गया। तो अगर ये मामला मजीद तूल पकड़ता है तो क्या हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदार होगी? देखो हुकूमत, एक बात और एहतजाज जो बैठे अगर उठते नहीं, आपने कहा कानून हाथ में लेकर कानून क्या करना है, क्या इनको खाने के लिए कानून हाथ में आएगा? देखो कानून चलाने वाले कानून खुद जानते हैं, हम उनको नहीं बताते हैं। बात यह है, हम सिर्फ एज ए पॉलिटिकल नुमाइंदे, हमें पता है, हम लोगों के सामने एक हकीकत रखते हैं कि इन तलबा का हक नहीं बनता कि वो रोडों पे आके और रेड जोन का रुख करे या ब्लैकमेलिंग करे या गवर्नमेंट को के सर पे बंदूक तान करके उनसे अपना चीज़ें मनवाते हैं। चीज़ें भी हमारे बच्चे हैं, कोई भी मसला नहीं है, हम कोई नाजायज़ करने को भी इनके साथ तैयार है, लेकिन हम इनके वो करते हैं हमारे बच्चे। लेकिन आप खुद देखें, आपका एक बच्चा जब मेडिकल स्टूडेंट के काबिल नहीं, आपका एक बच्चा जो डॉक्टर बन नहीं सकता, आपके एक बच्चे की मुस्तकबिल में पूरे कौम की मुस्तकबिल है, उसके हाथ में पूरे कौम की मुस्तकबिल है। आप इनको, वो तो चाहते हैं कि यहाँ हमारी राज हो, हम टेबल पे नकल सामने रख करके हम इम्तिहान पास करें, तो कल ये लोग आएंगे माशरे में, फिर क्या खाक खिदमत करेंगे? यही लोग फिर आप लोग कहेंगे कि बलूचिस्तान की डॉक्टर का फिर क्या होगा, यहाँ माशरे का क्या होगा, यहाँ लोगों की क्या खिदमत होगी? अभी सारे कराची साहब ने कल रेड जोन में आने का ऐलान कर दिया है, ठीक है, कल वो रेड जोन में आ रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? वो तो आपकी शादी है। देखो मैंने कहा कानून के सामने कोई भी जोरावर नहीं है, कानून सबसे जोरावर है, लेकिन नरमी शराफत एक अलग बात है। तो हम चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट की शराफत से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो हमारी एक सिस्टम है, देखो अदालतें मौजूद है, हमारे इदारे मौजूद है, जिसकी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो, यही स्टूडेंट अदालत में भी गए, वहाँ से मायूस हो के इनकी केस खारिज हो के वापस आ गए।
और जो भी है तो जाके अदालत में अपना केस लगा ले। सीनियर वजीर के मामला क्या है, कुछ बात की है इंतजामिया से, पूछा क्या चल रहा है वहाँ पे? देखो मामले हर जगह पोलिटिसाइज है, ये भी कोई सियासी मामला है। जिस बंदे का हमारे सरदार साहब बात कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी बेल बिफोर पे है, उसने कोर्ट से रिलैक्सेशन लिया है, बेल लिया है। तो क्या गवर्नमेंट, एक आदमी जब बेल अदालत ने बेल दी है, गवर्नमेंट कंटेम्प्ट करे, जाके अदालत की ऑर्डर की वायलेशन करे, उसको पकड़ ले? ये कोई कानून तो नहीं है। तो जब अदालत ने उसको रिलैक्सेशन दिया है, उनको ऑर्डर दिया है, बेल बिफोर पे है, तो जाके आप कोर्ट में सामना करें उनका। अकबर अस्कारी साहब का महकमा क्यों वापस लिया गया और मजीद भी इसका इम्कान? देखो आज का इशू मेरे ख्याल में ये है, सियासी बातें होती रहती है, किसी से ले लेते, गवर्नमेंट की मफाद इसी में है। सीएम है, हमारे कप्तान है, वो जिस तरह चलाते हैं हम उनके साथ हैं, जिससे भी लेते हैं, जिसको भी देते हैं, उस पर किसी को इतराज़ ना है, ना होना चाहिए।